Hello and Assalamu alaikum everyone. Welcome to Opening Mind series. My name is Afra Rashid and I'm clinical and counseling psychologist. We are on 20th episode today and we are just left with 4 episodes now. And what a wonderful journey it has been. And I'm so proud of each one of the speakers and each one of the participants who have been with us thoroughly. And I'm already getting sad when I think about it that we're almost about to end it. Anyway, so a little bit introduction about myself. I am the founder and CEO of Teen Therapy Wellness. I've been in this field for more than 7 years now. I've conducted hundreds of one-on-one sessions and as well as different workshops and seminars, and I've been able to talk about mental health into national and international platforms as well as some on-screen as well. My purpose behind having this opening mind series is to basically be able to talk about those mental health topics which we do not shed light on or which we tend to ignore because we don't think that it has any impact on us. But I believe अभी तक जितने भी टॉपिक्स पे हमने डिस्कस किया है वी हैव बीन एबल टू सी अ ह्यूज अमाउंट ऑफ इम्पैक्ट ऑफ दोज थिंग्स और आगे भी यही मकसद है कि मेंटल हेल्थ की उन चीज़ों के ऊपर बारे में बात किया जाए जिसको हम अक्सर नज़रअंदाज कर देते हैं. All right. I believe that this would not have been possible without our wonderful sponsors. We have Wellbeing Hub, We Protect You, and Amna Ansari, mental health coach, and they have been with me, with all of us from the beginning, and they have been promoting this series and being able to contribute as much as they can. So I would like to especially thank all three of our wonderful sponsors. Now, coming to the main part, that is, we have a very special guest today, Amna Ansari. She's also one of our sponsors, and I believe that she is a wonderful human being, not just a mental health trainer, not just NLP coach. As a human, जितना भी मेरे आमना अंसारी के साथ interaction हुई है, she is an amazing person, and she's also been conducting a lot of different workshops, different seminars. मैंने आमना अंसारी के साथ पहले भी एक collaboration में काम किया हुआ है. So we are honored, Amna, to have you with us. Thank you so much for taking out your time and being able to contribute to this series, not just as a sponsor or as a someone who would just spread about Opening Mind series, but also contribute as a speaker as well. Today, she will be talking about the toll of caregiving, burnout in parents of children with special needs. And this is also one of the very important topic. We do talk about children with special needs or वो किस तरह के होते हैं और क्या क्या उनकी needs होती हैं, but we do not mention or we do not put parents up front. Parents किस तरह से suffer करते हैं? Parents, how are they coping with the burnout and what's going on in them, और वो किस तरह से support लेते हैं, वो किस तरह से help कर रहे हैं. So today Amna Ansari would be shedding light on that as well. Thank you so much, Amna, for being with us, and thank you for choosing the wonderful topic. I'm going to let you share the screen, and over to you now. Thank you so much, Afra. Assalamu alaikum, everyone. Firstly, I would like Amna, we can't hear yes, you. you can't hear me. I am unmute. Yeah, now we can hear you. Okay, all right. Thank you so much, Afra, for such a heartwarming welcome and introduction. आई बिलीव कि ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे हम लोगों ने वो टॉपिक्स वो डिस्कशंस कवर की हैं जिन पे लोग बहुत रिलक्टेंट होते हैं टू इवन टॉक अबाउट देम आपस में भी. सो फर्स्टली थैंक यू सो मच फॉर प्रोवाइडिंग दिस प्लेटफॉर्म एंड गिविंग एवरीबडी द अपॉर्चुनिटी टू कम एंड लिसन एंड शेयर. एंड ऑफ कोर्स थैंक यू फॉर हैविंग मी. जैसा कि अफरा ने हाईलाइट तो दी थी कि आज का टॉपिक क्या है, आई वुड जस्ट लाइक टू ऐड वन स्मॉल थिंग. Apart from being this an important topic, it is also a very sensitive topic. So before I start, I just want to know, agar yahan pe koi special need parent hai, I would like to appreciate them, acknowledge them, and I would like to also apologize a little bit agar ye topic unke liye triggering hota hai. Lekin iska maqsad sirf ye hai to create awareness and bring those parents out front. क्योंकि वो पेरेंट्स ही वो सुपर हीरोज हैं, वो पेरेंट्स ही वो फाउंडेशंस हैं जिनकी वजह से उनके बच्चे
उनके बच्चे are being loved. So without any further ado, मैं अब ये start करूँगी. I just want to see how the screen is. I want to know how the Someone has screen is shared. raised her hand. Let's Who see. has? Someone has raised her hand. Kalu, Ustad. Do you want to say something? You can unmute yourself and talk. I guess by mistake हो गया है इनसे. हो गया होगा. ठीक है, no problem. All right. अच्छा. I just need to know share कैसे होती है screen. Okay. We have this. And मैं बहुत टेक्निकल नहीं हूँ गूगल टीम्स पे, ये इस पे गूगल पे. जस्ट गिव मी 1 सेकंड. आई नीड टू सी कि कहाँ से शेयर होगी. The third button on share screen, and then you can share the window or the entire screen, up to you. The entire screen. Okay. And do the window. Okay. Is it being shared? Yes. Okay. Do I need to do something about it? Show my screen anyway? Just minimize the screen. The Google Meet Chrome को minimize कर ले और Okay. अपनी slides open कर ले बस. All right. All right. मेरी स्क्रीन नजर आ रही है? नहीं नजर आ रही. Show my screen anyway. आपका वो option आई है ना? Show my screen my anyway. screen anyway. Show my screen anyway. Okay. All right. आप इसको minimize कर लें. Now? आपने ना वो नहीं किया हुआ. आपने when you are sharing your screen, I think आप कुछ नजर आना शुरू हुआ है. Press करें. Is it working? No, we just see a blue screen right now. Now? No. आपने ना I think share screen में ना वो कर दिया है. Chrome tab को share कर दिया screen instead of. I think so. Let me just do that with. We can only once see the again. Chrome tab. अच्छा, एक मिनट. I'm so sorry about this. Entire screen. Okay. Is it working now? Yes. Now you can minimize the tab and turn on the yes. Perfect. अब slide show Okay. कर दे. Perfect. Good to Okay, go. now it's working. All right. So sorry everybody. मुझे जरा time लगता है समझने में. Anyways, so let's start this. The topic of discussion today is the toll of caregiving, burnout in parents with special needs children. And as a topic, itself suggests कि हम focus करेंगे कि special need parents का जो burnout है, वो क्यों होता है, किन factors की वजह से होता है, और किस किस्म की support और coping strategies उनको provide कर सकते हैं हम. Just an overview. कि हम बात क्या करेंगे. We'll try to understand who the caregivers are, उनके challenges क्या होते हैं, किस किस्म का toll of caregiving experience करते हैं. Then of course we need to understand what is burnout, warning signs क्या होते हैं, because we're talking about parents here specifically, so we'll discuss parental burnout के factors क्या होते हैं. And of course, at the end, we'll get to know the coping strategies that we as a group and community can help them understand. So there was a survey done by Affinity Hub UK in 2019, जहाँ पे special need parents को एक survey दिया गया था. उन्होंने अपने responses submit किए थे, और responses में दोनों किस्म के responses आए थे, positives and negatives. नेगेटिव्स में पेरेंट्स ने आइडेंटिफाई किया था कि एंजाइटी डिप्रेशन एक्सपीरियंस करते हैं, हेल्पलेसनेस एक्सपीरियंस करते हैं, फ्रस्ट्रेशन एक्सपीरियंस करते हैं, ग्रीफ एक्सपीरियंस करते हैं. एंड ऑफ कोर्स फॉर मेनी पेरेंट्स having a special need child and the experiences they go through can be very traumatic as well. Positives में उन्होंने आइडेंटिफाई किया था कि we felt as if we have grown as a person, और अवेयरनेस आ गई थी क्योंकि they were determined to do more research about it. They were determined to connect with like community, likewise parents की community को join किया,
उसी वजह से उनकी फ्रेंडशिप्स डेवलप हुई, उसी वजह से उनको लगा कि दे आर नॉट अलोन इन दिस, और एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव उनके सामने आ गया था. सो दिस सर्वे बेसिकली गिव्स अस द आइडिया कि नेगेटिव एंड पॉजिटिव दोनों एक्सपीरियंसेस पेरेंट्स जो हैं उनकी जिंदगी में होते हैं. नाउ लेट्स अंडरस्टैंड कि केयरगिवर्स कौन होते हैं. जनरली यूनिवर्सली एक अंडरस्टैंडिंग है कि पेरेंट्स आर द केयर गिवर्स. ठीक है, बच्चों के लिए पेरेंट्स ही हैं जो केयर गिवर्स हैं, बट डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन, द लाइफ सिचुएशंस, द मेडिकल सिचुएशंस, केयर गिवर्स का रोल डिफरेंट इंडिविजुअल्स पे आ सकता है. फॉर एग्जाम्पल, देयर इज अ फैमिली जहाँ पे यंग अडल्ट इज द केयर गिवर बिकॉज वो बच्चा, क्योंकि वो एल्डेस्ट है, and the parent is experiencing certain kind of mental illness that they are, they cannot be left alone and they need some help. So वो बच्चे पे responsibility आ जाती है as a caregiver. Then for any unfortunate reasons, अगर parents are not around, so the grandparents take up the role of caregivers for their grandchildren. Then there is an adult जो कि अपने पेरेंट्स की मेडिकल नीड्स को अटेंड करता है. वहां पे वो अडल्ट केयर गिवर का रोल प्ले कर रहा है. इन सम कंट्रीज, इन सम सोसाइटीज, नेबर्स जो है वो केयर गिवर्स का रोल प्ले करते हैं बिकॉज दे नो दे हैव एन एल्डरली कपल एज अ नेबर. तो कॉन्स्टेंटली उन पे चेक रखना, वो नेबर जो है केयर गिवर रोल में आ जाता है. देन देयर इज अ पेरेंट हु हैज अ चाइल्ड विद स्पेशल नीड्स, बचपन से लेके बड़े होने तक. दैट पेरेंट बिकम्स द केयर गिवर. एंड ऑफ कोर्स समटाइम्स आपका स्पाउस जो है वो आपके केयर गिवर रोल में कन्वर्ट हो जाता है बिकॉज ऑफ सर्टन हेल्थ कंडीशंस, फिजिकल हेल्थ कंडीशंस और मेंटल हेल्थ कंडीशंस, जिसकी वजह से स्पाउस को केयर गिवर का रोल प्ले करना पड़ता है. एज पेरेंट्स, एज केयर गिवर्स या एज इंडिविजुअल्स, लाइफ में बहुत चैलेंजेस आते हैं, हर रोल के बहुत चैलेंजेस होते हैं, लेकिन हम यहाँ पे थोड़ा आइडेंटिफाई करेंगे कि केयर गिवर्स के क्या चैलेंजेस होते हैं. So daily care challenge is the most common kind of challenge जिसमें आपने emotional needs को attend करना होता है, behavioral needs को attend करना होता है, and in some cases medical needs को attend करना होता है. Because we're talking about parents with special needs children, advocacy is one of the biggest challenges. आप हर जगह, हर डिपार्टमेंट, हर सेक्टर, हर ग्रुप, हर कम्युनिटी में अपने बच्चे के लिए एडवोकेट कर रहे हैं कि जी मेरे बच्चे को, मैं अपने बच्चे की जिम्मेदारी लेता हूँ या लेती हूँ to help them grow and groom in the inclusion environment. डॉक्टर्स से बात करना कि मेरी गट फीलिंग है, there's something wrong, I need to get it checked. But we know that डॉक्टर्स को कन्विंस करना for additional tests, additional screenings बहुत चैलेंजिंग हो जाता है. स्कूल वाले इंक्लूजन प्रोग्राम्स में भी स्टैंडर्ड्स रखे हुए हैं, हर एक को इंक्लूजन प्रोग्राम में नहीं इंक्लूड करते. सोसाइटी, ऑफ कोर्स आप हर वक्त जस्टिफाई करते रहते हैं सोसाइटी को कि दिस इज व्हाई आई एम स्टैंडिंग अप फॉर माय चाइल्ड. देन इज द फाइनेंशियल स्ट्रेन. वी ऑल अंडरस्टैंड कि व्हेन देयर इज अ स्पेशल नीड चाइल्ड, पेरेंट्स को बहुत सारे फाइनेंशियल डिसीजंस लेने पड़ते हैं, फाइनेंशियल स्ट्रगल्स फेस करना पड़ता है बिकॉज यू हैव टू either run back and forth to the hospitals, run back and forth with counselors, therapists. आपको उनका थेरेपी रूटीन सेट करना होता है, एंड ऑफ कोर्स यू हैव टू सी कि आपका बजट कितना अलाउ कर रहा है. सोशल आइसोलेशन. You want your child to be included everywhere. You want to be a family everywhere. लेकिन you फील के हमें वाइब अच्छी नहीं आ रही, हमें वेलकमिंग वाइब नहीं आ रही है सोसाइटी से या किसी इवेंट से, किसी गैदरिंग से, किसी फैमिली से. दे आर लुकिंग डाउन एट माई चाइल्ड, दे आर लुकिंग डाउन एट मी. तो पेरेंट्स को बेहतर यही लगता है कि हम डिस्कनेक्ट हो जाते हैं बिकॉज हमारा फोकस हमारा बच्चा है, हमारा फोकस इज अ वेल बीइंग ऑफ आवर चाइल्ड. हम क्यों उसको एक ऐसी इन्वायरमेंट में इंक्लूड करें जहाँ पे देयर विल बी जजमेंट्स एंड क्रिटिसिज्म. इस चीज को अवॉइड करने के लिए पेरेंट्स को लगता है कि सोशल आइसोलेशन इज द बेस्ट ऑप्शन. इम्पैक्ट ऑन फैमिली रिलेशनशिप्स. This situation does have an impact on all sorts of relationships.
मम्स स्पेशली, क्योंकि वो अपने बच्चे की वेल बीइंग के लिए हर तरह के स्टेप्स ले रही होती हैं, हर तरह के चैलेंजेस को फेस कर रही होती हैं, बट देन देयर इज अ लाइन ऑफ फैमिली मेंबर्स इंक्लूडिंग द हस्बैंड जो कि वो सपोर्ट प्रोवाइड नहीं करते, वो एक्सेप्टेंस नहीं देते, वो एक्नॉलेजमेंट नहीं देते, एंड देन द रिलेशनशिप्स वन बाय वन स्टार्ट टू गेट डैमेज्ड। स्लीप डिप्रिवेशन, यहाँ पे स्लीप डिप्रिवेशन ये बात नहीं होगी कि अच्छा नींद नहीं आ रही। यहाँ पे स्लीप डिप्रिवेशन इज द कांस्टेंट रेस ऑफ थॉट्स। व्हेन अ पेरेंट इज लाइंग ऑन द बेड रात में, उनका रेस ऑफ थॉट चलता रहता है, मुझे कल क्या करना है, मुझे नेक्स्ट वीक क्या करना है, मुझे लोगों को जवाब कैसे देना है, मुझे बजट अपना कैसे बनाना है, मेरे बाकी बच्चे हैं मैंने उनको टाइम कैसे देना है, मैं अपने बच्चे की जिंदगी कैसे बेहतर बना सकता हूँ या बना सकती हूँ, व्हाट इज द बेस्ट दैट आई कैन डू, व्हाट इज समथिंग दैट आई नीड टू अवॉइड। All of this leads to sleep deprivation, losing sense of self outside of caregiving. Of course, as parents, आप अपने आप को आइडेंटिफाई करने लगते हैं with the child, with the needs of the child, with the requirements of facilities. आप अपने आप को वहां से अटैच करने लगते हैं. So you lose the sense of being an individual. You don't know who you are anymore. क्योंकि आपका लाइफ का साइकिल जो है वो उन्हीं चीजों के अराउंड घूमता है जिसकी आपके बच्चे को नीड है. बिकॉज हम बर्न आउट के लिए बात कर रहे हैं यहाँ पे, वी नीड टू अंडरस्टैंड कि बर्न आउट क्या है बेसिकली. वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने समवेयर इन द 1980s बर्न आउट को आइडेंटिफाई किया था, बट वो स्पेसिफिकली वर्क प्लेस से रिलेटेड था. नाउ कमिंग टू 2025, बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो कि अब इंक्लूड हो चुके हैं बर्नआउट को एक्सप्लेन करने के लिए. It is basically a state of emotional, physical, and mental exhaustion caused by prolonged stress. For example, you have a task at your hand, ठीक है, और आपको constantly उसका स्ट्रेस है. वो इतना ज्यादा स्ट्रेस आपकी बॉडी पे इम्पैक्ट आ गया है उसका कि वो इमोशनली, फिजिकली, मेंटली आपको बिल्कुल ड्रेन कर चुका है, एंड यू डोंट फील लाइक कि आप कोई प्रोडक्टिव रिजल्ट दे सकते हैं या आप अपना कोई टास्क पूरा कर सकते हैं. इन दिस केस, द प्रोलॉन्ग स्ट्रेस इज द वेल बीइंग ऑफ द चाइल्ड. यू आर कॉन्स्टेंटली थिंकिंग अबाउट कि मैं अपने बच्चे के लिए बेहतरी कैसे ला सकूं, बेहतरी कैसे ला सकूं, एंड इन दिस जर्नी you end up experiencing burnout. Signs of burnout. These are some general signs of burnout, ठीक है, क्योंकि आप एक बेसिक फाउंडेशन ऑफ अंडरस्टैंडिंग हमें बनानी है यहाँ पे कि बर्नआउट होता क्या है, उसके साइंस और सिम्टम्स क्या होते हैं. सो वी नीड टू नो कि मेंटल, फिजिकल, इमोशनल साइंस ऑफ बर्नआउट क्या होते हैं. आपकी फॉरगेटफुलनेस होने लगती है, आपका Excuse me, I have a question. यस यस प्लीज. मैम, एक्सक्यूज मी मैम, दरअसल क्वेश्चन मतलब ये कि असल में हमारे रिलेटिव्स हैं वो केपीके में होते हैं, तो असल में उधर फ्लड सिचुएशन है, तो मैं कह रहा था कि काइंडली अगर दुआ हो जाए उनके लिए. We can definitely do that. Is it okay कि हम at the end of this session कर लें? You are मैम more than welcome to remind us about it. मैम उसका कोई मसला नहीं, आप बेशक एंड भी कर लें, मगर असल में मैंने अभी एकेडमी चले जाना है, तो मैं कहता अगर मेरे सामने हो जाए, और मैं डोनेशंस वगैरह भी इसलिए. How about Okay, हम end पे कर लेंगे Afra? since you know the session is also recorded. ठीक है, तो फिर you can always be part of it at the end, क्योंकि हमने अपना टाइम का भी ध्यान रखना है. तो इंशाल्लाह by the end of the session we'll do it. Okay, don't worry about it. इंशाल्लाह. ओके, थैंक यू मैम, योर प्लेयर. All right. So we were talking about the signs of burnout to understand कि ये होता क्यों है और कहाँ कहाँ impact ला रहा होता है. आपकी मेंटल हेल्थ पे इम्पैक्ट आता है इन द फॉर्म ऑफ फॉरगेटफुलनेस, होपलेसनेस. प्रोक्रेस्टिनेशन इस तरह हो रही होती है कि आपका माइंड इतना क्लटर्ड होता है विद ऑल काइंड्स ऑफ थॉट्स कि यू सिट बैक एंड यू से कि मुझे इस क्लटर से डील ही नहीं करना है, इस मेंटल क्लटर से डील ही नहीं करना है. सो यू जस्ट स्टार्ट टू डिले थिंग्स. फिजिकल इम्पैक्ट इसका आता है, आपकी स्लीप हैबिट चेंज होती हैं, आपकी फ्रीक्वेंट फिजिकल हेल्थ में प्रॉब्लम्स आने लगती हैं, एपेटाइट चेंज होने लगती हैं, एंड इन अ लॉट ऑफ केसेस ये स्ट्रेस, ये बर्नआउट बेसिकली फिजिकल मैनिफेस्टेशन करने लगता है. ईदर इट्स अ कांस्टेंट हेडेक, ईदर इट्स अ कांस्टेंट पेन और क्रैम्प्स इन द लेग्स और बैक एक समवेयर, या फिजिकल मैनिफेस्टेशन में भी टर्न हो जाता है.
Then is the emotional signs of burnout. Anxiety and depression, we already mentioned a bit. Someone is trying to talk and I cannot hear. मैम बहुत डिस्ट्रक्शन हो रही है. मेरी आवाज क्लियर आ रही है सबको? No. Okay, can you see who is unmute? Yes, I'm watching. I've muted them. All right, thank you so much. सो इमोशनल साइंस में आपकी एंजाइटी और डिप्रेशन आ जाता है. एंजाइटी इसलिए कि यू आर कॉन्स्टेंटली ऑन द अलर्ट मोड. ठीक है, अलर्ट मोड इसलिए होता है कि यू आर जस्ट ऑब्जर्विंग, कॉन्स्टेंटली नोटिसिंग आपका बच्चा किस तरह बिहेव कर रहा है, आपके बच्चे की डिमांड्स क्या हैं, आपके बच्चे की रिक्वायरमेंट्स क्या हैं. एक्सटर्नल फैक्टर्स play the part of the needs and the requirements. So you're on the edge all the time. Irritability and anger, of course, जब इतना कुछ चल रहा होता है तो you do end up feel irritated. And let me tell you before we move on, feeling irritated and feeling angry is absolutely normal here because you're a human being who is dealing with all of this. अगर आप साथ साथ जॉब भी कर रहे हैं, so you start mistrusting the people's motives around you, क्योंकि आप ऑलरेडी इतनी जजमेंट और क्रिटिसिज्म अपने घर से सुनते आ रहे हैं फॉर योर चाइल्ड्स लाइफ एंड फॉर योर चाइल्ड्स स्टेट. आपको जॉब पे भी लगता है कि आपसे अगर कोई बात कर रहा है या आपको कोई हेल्प प्रोवाइड कर रहा है, देयर इज अ रीजन बिहाइंड इट. आप उसके मोटिव्स को, उसकी इंटेंशंस को क्वेश्चन करने लगते हैं. एंड देन ऑफ कोर्स क्रॉनिक स्ट्रेस, जिसकी मैंने फिजिकल में भी बात की कि क्रॉनिक स्ट्रेस जो है इट कैन टर्न इनटू फिजिकल मैनिफेस्टेशन. बहुत सारे लोग एग्जॉस्शन और बर्नआउट को मिक्स कर देते हैं, बट देयर इज अ वेरी थिन लाइन डिफरेंस बिटवीन एग्जॉस्शन एंड बर्नआउट, और इसको आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी है. एग्जॉस्शन आपकी टेम्पररी होती है. यू टेक अ ब्रेक एंड यू रेस्ट अप, आप अपना सेल्फ केयर एक्टिविटी करते हैं एंड यू स्टार्ट टू फील बेटर. Burnout is more emotional, is more chronic. There's another disturbance. All right. A burnout जो है वो आपका emotional होता है, chronic होता है और detachment based होता है. Detachment as in you are getting disconnected with everything and everyone around you. You don't feel like talking to anybody, you don't feel like doing it. आप चाहे जितना भी रेस्ट कर लेंगे, आप चाहे रात को 7 hours भी सो जाएंगे, but you will wake up so tired, so overwhelmed and maybe overstimulated. वो सुबह का उठना ही आपकी बॉडी के लिए बहुत भारी होगा. This is the difference between exhaustion and burnout. But there's a point जहाँ पे ये दोनों आपस में merge हो रहे हैं. There's fatigue and exhaustion and burnout. There is low energy and exhaustion and burnout. And there is poor sleep. But इनको differentiate करने के लिए ये तीनों points हैं जिसका हमें समझना बहुत जरूरी है. Just to give you a highlight, मैं इस पे बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगाऊंगी. Burnout की 5 stages होती हैं. हनीमून फेज, ऑनसेट, क्रॉनिक, बर्नआउट, हैबिचुअल. आपको बर्नआउट जो है वो एकदम से नहीं होता, आपका बर्नआउट इवेंचुअली होता है. स्ट्रेस आपका सिचुएशन बेस्ड होता है मोस्टली. जब वो सिचुएशन खत्म हो जाती है तो आपका वो स्ट्रेस भी खत्म हो जाता है. बर्नआउट सॉर्ट ऑफ लिंगर्स ऑन विद यू. पहले आप बड़े एक्साइटेडली काम शुरू करते हैं, फोकस्ड काम शुरू करते हैं, देन आप फील करने लगते हैं कि अच्छा समथिंग इज नॉट राइट, मेरे एनर्जी लेवल्स लो हो रहे हैं बट मुझे ये करना तो है, आई एम स्टिल डूइंग इट. देन कम्स द पॉइंट कि आपके वो लो एनर्जी लेवल्स, वो स्ट्रेस आपका परसिस्टेंट होने लगता है. आप ये फील करने लगते हैं कि अच्छा अब ये नहीं हो रहा है मुझसे, दिस समथिंग रॉन्ग जिसकी वजह से मैं ये नहीं कर पा रही. देन द बर्नआउट फेज स्टार्ट्स. ठीक है, आप अपनी लिमिट तक पहुंच गए हैं एंड आपकी फंक्शनिंग जो है, चाहे आप पेरेंट हैं चाहे आप वर्किंग प्रोफेशनल हैं, आप उस लिमिट तक पहुंच जाए अब कि मैं नहीं कर सकती, आई जस्ट कैन नॉट डू इट, इट्स टू मच फॉर मी. दिस इज व्हाट यू आर थिंकिंग एट दिस पॉइंट. एंड देन कम्स द हैबिचुअल बर्नआउट. बाय
There's another disturbance again. All right. Habitual burnout happens जब आप के साथ ये चलता ही रहता है। All of the unpleasant feelings you are feeling, वो बस आपके साथ चल रही हैं. They have embedded in you physically and emotionally, and you don't seem to come out of it. वो आपका रूटीन का हिस्सा बन चुका है. That is a habitual burnout. Are there any questions in the chat or any question anybody needs to ask before I move on to the parental burnout? All right, let's move on. अभी तो हमने बात कर ली कि बर्नआउट होता कैसे है, ठीक है, किन रीजंस की वजह से होता है जनरली टू हैव द अंडरस्टैंडिंग. Alpha, there's somebody who's constantly unmuting. Can you please check again? Yes, I am checking. I'm sorry, but I'm removing if I hear any disturbance again. Thank you. अब मैं continue कर लूं? All right. So after talking about and having a basic understanding कि burnout होता क्या है, I'm going to highlight 3 stages of caregiving burnout. हम बात कर रहे हैं पेरेंट्स की यहाँ पे, पेरेंट्स ऑफ स्पेशल नीड चिल्ड्रन, जो कि ऑलरेडी एक स्ट्रगल से गुजर रहे हैं, जो कि ऑलरेडी अपनी जिंदगी को हर तरीके से मोल्ड कर चुके हैं अपने बच्चे की वेल बीइंग के लिए. बट व्हाइल डूइंग ऑल ऑफ दिस दे डू एंड अप एक्सपीरियंसिंग बर्नआउट. पहला स्टेज क्या होता है? स्ट्रेन एंड ओवरलोड. You just got to know there is a special need for your child. You just got to know कि अच्छा ये requirements है मेरे बच्चे की well-being के लिए. You start researching. आप information overload करना शुरू कर देते हैं. आप resources find out करना शुरू कर देते हैं कि बस मैं इस चीज़ को किसी तरह ठीक कर दूं कि सही हो जाए सब कुछ मेरे लिए और मेरे बच्चे के लिए. But what you don't realize here कि you are ending up feeling overwhelmed, exhausted. आपको रूटीन बैलेंस करना बहुत चैलेंजिंग लग रहा होता है. इवन द इंफॉर्मेशन दैट यू आर ट्राइंग टू गेट फ्रॉम द रिसोर्सेज, वो एक चैलेंज लगना शुरू हो जाता है कि मैं इतना कुछ कैसे समझूं, इतना कुछ मुझे अपने बच्चे की वेलबींग के लिए करना है, ये मैं कैसे करूं. That's the challenge. These are the questions that you start thinking during this strain and overload stage. Then comes the withdrawal and isolation. ये बात मैंने स्टार्टिंग ऑफ द सेशन में भी की थी कि इवेंचुअली पेरेंट्स को आइसोलेशन बेहतर लगने लगती है बिकॉज दे जस्ट कैन नॉट सी देयर child being sidelined anywhere or their child being judged because of their certain appearance, their certain aspect of special need. So यहाँ पे parents जो हैं अपने आप को relationships से, groups से, सर्टन एनवायरनमेंट से अपने आप को डिस्कनेक्ट करने लगते हैं, आइसोलेट करने लगते हैं. यहाँ पे विड्रॉल और आइसोलेशन में सेंस ऑफ आइडेंटिटी जो है वो लूज होना शुरू हो जाता है. एंड दिस यूजुअली हैपेंस विद द मम्स हियर कि वो इतना इन्वेस्टेड हो जाती हैं अपने बच्चों की वेल बीइंग के लिए, एंड बिकॉज शी वांट्स टू अवॉइड ऑल सॉर्ट्स ऑफ जजमेंट्स, ऑल सॉर्ट्स ऑफ क्रिटिसिज्म, शी स्टार्ट्स टू लूज द सेंस ऑफ आइडेंटिटी फॉर herself. Then it's the complete exhaustion. This is the last stage जहाँ जो कि आप information overload, familial isolation, social isolation को सहते सहते अब आप आ गए हैं कि यहाँ पे सब कुछ आपके लिए जो है वो क्रॉनिक हो गया है. ठीक है, आपकी नींदें बिल्कुल डिस्टर्ब हो चुकी हैं. यू आर कॉन्स्टेंटली लो ऑन एनर्जी बट यू आर पुशिंग योरसेल्फ. यू आर पुशिंग योरसेल्फ क्योंकि यू नीड टू मेक इट बेटर फॉर योर चाइल्ड. You need to get the best for your child. You need to talk to people. You need to advocate. You're pushing yourself here. But इस push के साथ साथ आप अपने आप को completely exhaust कर रहे हैं, which can lead to certain physical and medical health conditions for the caregiver as well. Is this clear to everybody? Can I move on? Are there any questions? No, ma'am. All right. Let's move on. So, एक बहुत ज़रूरी क्वेश्चन, एक बहुत ज़रूरी एस्पेक्ट इस डिस्कशन का कि why does this
burnout happen in the parents of special need children? As Afra said कि हम वैसे तो बात कर लेते हैं कि अच्छा स्पेशल नीड बच्चों के लिए ये मसले हैं, ये मसले हैं, ये मसले हैं, ये चीजें हैं, बट हम पेरेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से कभी बात नहीं करते कि व्हाट पेरेंट्स आर एक्सपीरियंसिंग ऑन अ डेली बेसिस. It starts with navigating daily care requirements. Special need बच्चों के लिए, of course, you are asked to have a specialized routine to help them feel better, to help them understand what it is to be in a routine. ठीक है, टू अंडरस्टैंड कि अच्छा हमें इस वक्त क्या करना है, इस वक्त कैसे करना है. यू आर गेटिंग अप इन द मॉर्निंग, देयर इज अ सर्टेन टाइम जिस पे आपने ब्रेकफास्ट देना है, देयर इज अ सर्टेन टाइम जिस पे आपने मेडिसिन देनी है, देयर इज अ सर्टेन टाइम जिस पे आपने थेरेपी एक्सरसाइजेस या तो आपने सेंटर लेके जाना है या आपने खुद इम्प्लीमेंट करनी है. एंड ड्यूरिंग ऑल ऑफ दिस यू आर कॉन्स्टेंटली ऑन योर एज. आप इतने विजिलेंट हैं कि आप हर मूवमेंट, हर साउंड, हर चेंज पे आप एकदम अलर्ट हो जाते हैं कि ओके व्हाट इज हैपनिंग, व्हाट डू आई नीड टू डू. ठीक है, दिस कांस्टेंट, द प्रेजेंस ऑफ द कांस्टेंट makes parents experience the burnout. If you have a child or if you have children who do not have physical mobility इतना ज़्यादा, जिनको physical mobility के लिए additional hands की ज़रूरत है, और यहाँ पे सिर्फ पेरेंट्स ही अगर इन्वॉल्व हैं, you are feeding them, you are changing them, you are bathing them, you are helping them to sit up, you are helping them to put on their shoes, you are helping them to comb their hair. ये कहने को तो छोटी छोटी चीजें हैं, but this is a lot. This is you as a parent constantly on the move. और क्योंकि एक रूटीन के साथ चल रहे हैं, you just cannot miss a certain block of time. अगर आपने वो ब्लॉक ऑफ टाइम मिस कर दिया तो पूरे दिन का रूटीन जो है वो ऊपर नीचे आ जाएगा. एंड दिस थॉट ऑल्सो क्रिएट्स कॉन्स्टेंट फटीग, कॉन्स्टेंट स्ट्रेस इन द बॉडी. हम अगर स्कूल इंस्टीट्यूट्स के पॉइंट ऑफ व्यू पे अब बात करें कि यहाँ पे पेरेंट्स के लिए बर्नआउट किस तरह से होता है, जैसे मैंने इनिशियल स्टार्टिंग में बात की कि पेरेंट्स आर कॉन्स्टेंटली एडवोकेटिंग फॉर देयर चिल्ड्रन टू बी इंक्लूडेड. ठीक है, इंक्लूडेड इन ग्रुप इवेंट्स, इंक्लूडेड इन सोशल इवेंट्स, इंक्लूडेड इन स्कूल्स. ऑल्दो बहुत सारे स्कूल्स हैं जिन्होंने इंक्लूजन सेन एजुकेशन इंट्रोड्यूस करा दिया है, बट दे आर नॉट इक्विप्ड फॉर इट. ठीक है, दे आर स्टिल बिहाइंड इन द रिसोर्सेज एंड द फैसिलिटीज. पेरेंट्स के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है. दे आस्क कि हमें IEPs, इंडिविजुअल एजुकेशन प्लान्स हमें चाहिए अपने बच्चे के लिए, या आप प्रोवाइड करें, आप इंक्लूड करें. You are back and forth in communication with the school counselors, with the school administration, with the therapist outside the school also, कि हमारे बच्चे को इंक्लूड करने के लिए हमें ये स्ट्रगल करना पड़ा है. There are certain assessments जो कि आपके बच्चे के लिए वो वर्केबल नहीं है, बट इट इज़ अ रिक्वायरमेंट ऑफ द स्कूल कि जी सेन के इंक्लूजन में ये असेसमेंट हमें करनी है. It is not happening for your child. There are uncooperative teachers maybe, ठीक है, या trained teachers नहीं है. Curriculum का difference आ रहा है. Then if somehow आपने म्यूचुअल ग्राउंड्स पे आ गए हैं स्कूल के एडमिनिस्ट्रेशन और आप लोग आपस में कि अच्छा स्ट्रीमलाइन स्कूल में आपने एडमिशन करा दिया, this lack of empathy among the students in the class, this lack of empathy probably around the staff of the school, and that creates a lot of stress for the parents, क्योंकि बच्चे की वो ग्रोथ नहीं हो रही होती, बच्चे की वो रिक्वायरमेंट्स पूरी नहीं हो रही होती. There are certain cases जो कि मैंने सुने in which the house staff of school, ठीक है, which includes the nanny and ये सारे लोग, they actually did not bother to clean up after the child. ठीक है, and when the parent came up at home time बच्चे को पिक करने के लिए, the clothes were spoiled,
the shoes were spoiled and nobody was taking responsibility of the cleanliness. And that's very hurtful for the parent to see कि मेरे बच्चे को ऐसे इग्नोर कर दिया गया है जैसे he or she being existing is not important. So इंक्लूसिव एजुकेशन के बहुत सारे चैलेंजेस हैं. अगर हम इस पे बात करेंगे तो हम तो बहुत लंबा बात कर लेंगे, बट जस्ट टू गिव एन आइडिया कि पेरेंट्स के लिए क्या चैलेंज है और बर्न आउट क्यों होता है. सो आई highlighted this कि inclusive education is a big problem. Stigmas and misunderstanding. यहाँ मैं थोड़ा सा हाईलाइट करूंगी. It could be triggering. I apologize and I'm so sorry if it hurts anybody. यहाँ पे मैं बात करूंगी कि if there's a special need child, जिन आ गया है इस पे, बाबा के पास ले जाओ. ठीक है, तुमने कोई गुनाह किया है अपनी जिंदगी में, उसका नतीजा है कि तुम्हारे बच्चे के साथ ऐसे हुआ है. आई एम सो सॉरी एंड अनफॉर्चुनेटली दीज आर द बिटर रियलिटीज जो कि हमारी सोसाइटी में पेरेंट्स फेस करते हैं. एंड दे आर सो स्केर्ड टू टॉक अबाउट इट, दे आर सो स्केर्ड टू शेयर इट, बट दिस इज हैपनिंग. द मदर इज ब्लेम्ड अप फ्रंट, फेस फ्रंट, कि तुमने प्रेगनेंसी में कुछ ऐसे सोचा होगा तो ये हो गया, तुमने प्रेगनेंसी में ख्याल नहीं रखा, तुमने प्रेगनेंसी में ये खा लिया जिसकी वजह से बच्चे के साथ ये हो रहा है. आई मीन यू स्टार्ट क्वेश्चनिंग द थॉट प्रोसेस ऑफ द पीपल अराउंड कि आप कैसे एक पेरेंट को ये क्वेश्चन कर सकते हैं कि जानते पूछते उसने अपने बच्चे के लिए गलत किया होगा, स्पेशली माँ के लिए. आप ये कैसे क्वेश्चंस रेज कर सकते हैं, आप ये कैसे मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट कर सकते हैं. Rather than creating these misunderstandings and labels, why not put in the effort in making yourself aware about it? कि ये क्यों हुआ है? There's always a medical reason, there's always a psychological reason, there's always a reason that it is happening. But फौरन से पहले एज अ जजमेंट फिंगर पॉइंट कर देना कि ये दिस इज स्पिरिचुअल related, this is religious related, or you know, science and medicine and psychology has nothing to do with it, that's wrong. That's wrong. You're shutting out that parent. You are making that parent believe that उन्होंने जान के अपने बच्चे के साथ कुछ गलत किया. Lack of awareness of society, as I already mentioned. Lack of peer relationships. अगर ये parents किसी दूसरे पेरेंट्स के साथ ये बात शेयर करते हैं, you get a backfire. ठीक है, आपको वो कॉन्वर्सेशन उल्टा आप पे ही आ जाती है. यहाँ रिलेशनशिप्स डैमेज होना शुरू हो जाते हैं. लिमिटेड अपॉर्चुनिटीज, एज आई शेयर्ड अबाउट द इंक्लूजन, एजुकेशनल इंक्लूजन एज वेल. सबसे बड़ी लिमिटेड अपॉर्चुनिटी तो आपकी इंक्लूजन है स्कूल्स में. देन देयर इज अ लिमिटेड अपॉर्चुनिटी ऑफ ट्रेन्ड सेंटर्स, trained therapy centers, trained rehabilitation centers, trained staff. ठीक है, ये आपके पास अपॉर्चुनिटीज नहीं है, और अगर हैं तो they are so expensive that not many parents, a lot भी नहीं, not many parents उनको लगता है कि हम तो ये अफोर्ड ही नहीं कर सकते. lack of empathy. हम जजमेंट पास करने के लिए तो सबसे पहले खड़े हैं, लेकिन हम अपने आप को उनके शूज में स्टैंड होने के लिए हमारे पास टाइम नहीं है. हमें लगता है इट्स अ वेस्ट ऑफ टाइम टू इवन थिंक अबाउट इट कि अच्छा अगर ये हमारे साथ होगा तो हाउ विल वी फील अबाउट इट. आप बच्चों को एम्पैथी जब सिखाते हैं, यू आस्क देम, सिबलिंग की आपस में ही देख लें, अगर लड़ाई हो रही है, आप पूछेंगे बेटा अगर वो तुम्हारे साथ ऐसे करेगा तो तुम्हें कैसा लगेगा. ये क्वेश्चन हम पूछते हैं. ठीक है, just to make them understand कि you know this is not okay and this needs to be addressed and there are options and alternatives, you'll talk about it. but empathy ही नहीं है इन बच्चों के लिए, इन पेरेंट्स के लिए empathy ही नहीं है. you sideline them, you shut them out. एक एक किस्सा है बहुत छोटा सा, मैं शेयर करूंगी. there was a child और he was just borderline, उसके थोड़े से issues थे, behavioral issues थे, they were borderline, they were not so obvious, but वो group of बच्चों के साथ बैठा था and he wanted to share the food. ठीक है, वो he wanted somebody's snack, ठीक है, मुझे भी खाना है.
वो यूं ऐसे बच्चे ने यूं करे, नहीं तुम नहीं खा सकते, तुम्हें नहीं खाना है, मैं तुम्हें नहीं दे सकता। दैट मेड द चाइल्ड फील सो बैड, ठीक है, कि मैंने तो सिर्फ फूड शेयर करने की बात की थी। एंड इस तरह के और कितने केसेस होते होंगे जो हमारे सामने नहीं आते। दिस इज जस्ट वन वन सिचुएशन दैट समबडी शेयर्ड विद मी, और ये भी जिसका कोई बहुत इतना ऑब्वियस बिहेवियरल इमोशनल एस्पेक्ट नहीं था, बट देयर वर सर्टेन एस्पेक्ट्स उसके थे, उस पे ये बात हुई। सो द चिल्ड्रन हु डू नीड लव, हु डू नीड एम्पैथी, हु डू नीड कंपैशन, उनके साथ भी नहीं होता ये। Where are we heading there? What are we telling our the parents of these children? कि we cannot stand your child. The comparison. जब अवेयरनेस नहीं होती है तो आप कंपैरिजन करने लगते हैं, अच्छा मेरे बच्चे के साथ हुई, कभी ऐसा नहीं हुआ, या मैंने तो अपने लिए अपने बच्चे के लिए ऐसा नहीं किया, तो तुम्हें कैसे करेगा, तुमने ऐसे क्यों किया? When there is no empathy, when there is no awareness, the comparison hits in. Constant reminders of disability. This is very triggering and this is a bitter reality कि आप पेरेंट्स को कॉन्स्टेंटली रिमाइंड करते रहते हैं कि तुम्हारा बच्चा तो डिसेबल्ड है और तुम तो एंजॉय नहीं कर सकते अपनी लाइफ, तुम्हें तो आना ही नहीं चाहिए क्योंकि लोग मुड़ मुड़ के तुम्हारे बच्चे को देखेंगे। Why are you reminding them of something, of a struggle जो कि उनकी लाइफ का हिस्सा तो बन चुका है, लेकिन वो साइकिल में से बाहर निकलना चाह रहे हैं, उस कांस्टेंट रिमाइंडर से बाहर निकलना चाह रहे हैं, बट आप उनको बाहर नहीं निकलने दे रहे। आप उनको बार बार पॉइंट आउट करते रहते हैं कि तुम्हारा बच्चा तो डिसेबल्ड है। Let's not do this. Coming to the coping, before I come to this coping strategies, any question, anything that you want to ask, or anything that you want to share? Okay. Now we'll talk about how the parental burnout can be dealt with. सबसे पहले, when you're researching about certain need of your child, also search about supportive network. Also get in touch with the parents of similar situation. Get yourself enrolled in a supportive group. क्योंकि जब आप एक सपोर्टिव ग्रुप में होंगे, देयर आर चांसेस कि यू विल गेट गुड गाइडेंस, अ गुड सपोर्ट, आपकी बात सुनने वाला कोई होगा, एंड यू विल नॉट फील कि आई एम अलोन इन दिस। कार्व आउट मी टाइम। इट कैन फील कि ये तो बहुत ही आइडियल सी नॉन रियलिस्टिक सिचुएशन है कि मैं अपने लिए टाइम कैसे निकाल सकता हूँ या निकाल सकती हूँ, बट ये एफर्ट करना पड़ेगा। यू नीड टू हैव अ मी टाइम एज वेल, चाहे वो रात का टाइम है, चाहे वो सुबह उठने का टाइम है, चाहे वो ड्यूरिंग द डे का टाइम है, बट यू नीड टू हैव सम मी टाइम एज वेल। कनेक्ट विद एक्सटर्नल केयर गिविंग सर्विसेज। एक और चीज हमारे यहाँ कॉन्सेप्ट है, बच्चा पैदा किया है तो तुम्हारी ही जिम्मेदारी है। बच्चे पैदा किए तो माँ बाप ही की जिम्मेदारी है और किसी की जिम्मेदारी नहीं है। सोसाइटी जिम्मेदारी कब लेती है? जब पॉइंट आउट करना हो गलती को, जब पॉइंट आउट करना हो डिसेबिलिटी को, जब पॉइंट आउट करना हो, जब जजमेंट आपको पास करनी हो, तब सोसाइटी जिम्मेदारी ले लेती है माँ बाप को लेट डाउन करने के लिए। लेकिन माँ बाप को सपोर्ट जब चाहिए हो, एक्सटर्नल सपोर्ट जब चाहिए होती है, सब लोग कहने लगते हैं तुमने बच्चा पैदा किया है तो तुम्हारी जिम्मेदारी है। या देयर आर सो मेनी हु से कि इस चीज के लिए तुम्हारे पास बड़े पैसे आए हुए हैं, घर वालों को सपोर्ट करने के लिए पैसे नहीं है तुम्हारे पास। एंड दैट इज फॉर द फादर्स स्पेशली, वो फैमिलीज, वो कपल्स जो आपस में मिलकर अपने बच्चे की वेल बीइंग के लिए स्टेप्स लेना चाह रहे हैं। देयर आर पीपल स्टैंडिंग बिहाइंड दैट फादर के तुम्हारे पास वैसे तो पैसे नहीं है, तो इस चीज के लिए कहाँ से पैसे आ गए? अगर आप किसी नैनी को हायर कर रहे हैं, किसी ट्रेंड एलएसए को हायर कर रहे हैं, किसी ट्रेंड केयर गिवर को हायर कर रहे हैं, सो मेनी पीपल स्टार्ट क्वेश्चनिंग योर फाइनेंशियल स्टेटस। देन प्लान आउट फाइनेंसेस, एज मैंने थोड़ा सा बता ही दिया कि when parents sit down, when parents come to a mutual understanding of it, हमें finances कैसे मैनेज करने हैं, that also helps
with a burnout. Another very important thing, be very realistic. Don't try to do everything alone and at the same time. आप नहीं कर सकते अकेले, and that is absolutely okay. You are not a machine. You're a human. You're not a robot जिसके दिमाग में प्रोग्रामिंग एंटर कर दिए कि जी क्योंकि आपका बच्चा जो है वो स्पेशल नीड चाइल्ड है तो आप एक रोबोटिक उसमें सिस्टम में कंप्यूटराइज सिस्टम के साथ आप चलते रहेंगे. You are a human being who has feelings, who has emotions, who has thoughts, who has needs and requirements as an individual. Do not ignore them. Do not feel guilty about, having a cup of tea in peace. Do not feel guilty about कि आप एक स्पेशलाइज्ड केयर गिवर के साथ उसको 10 मिनट के लिए छोड़ के गए कि जी मैं नहा लूं. Become aware of unhelpful feelings. It's okay to feel angry. It's okay to feel disappointed. It's okay to feel guilty. It's okay to feel the frustration. उनको accept करें. Become aware of these feelings and talk to somebody. Yeah, I am feeling all of this. Is it okay? मैं overthink तो नहीं कर रही. आपको external validation चाहिए होती है. You are looking out for it, and sometimes in some situations it's also okay to get the external validation because you're not in a space. Mental space आपकी ऐसी नहीं है कि आप उसे खुद अपने लिए बेहतरी decide कर सकें. So please reach out to somebody who is going to help you understand your feelings. Trust your parenting. कोई भी पेरेंट अपने बच्चे के लिए जानते बूझते कभी भी गलत डिसीजन नहीं लेता. A lot of people will say 2.5 साल का बच्चा बच्ची है कि अरे बोल लेगा क्या हो गया बोल लेगा. No. If your parental gut is saying that there is something off about my child, that he or she has not started to speak, get a second opinion. Go out and talk to people. Go out and talk to parents कि this is something जो मैं feel कर रही हूँ. Guide me about it. Trust your instincts. Trust your parenting. Stop feeling guilty. It comes, but it comes with practice and patience. Another important factor, quiets the inner critic. होता क्या है कि जब जजमेंट्स आ रही हैं, अनसोलिसिटेड एडवाइस, अननेसेसरी सजेशंस आ रहे हैं कि जी बाबा को दिखा दो, ये देसी टोटका कर लो, यहाँ बात कर लो, ऐसे बात कर लो, यू स्टार्ट क्वेश्चनिंग योरसेल्फ. ये जो मैं कर रही हूँ या कर रहा हूँ, जो प्लान मैंने बनाया है इसकी बेटरमेंट के लिए, जो रिसोर्सेज मैंने एक्सप्लोर किए हैं, क्या वो वाकई गलत है? You start questioning yourself and you start criticizing yourself कि मैं ये अकेले कर ही नहीं सकती. हाँ, जो बराबर में लोग बैठे हुए हैं वो ही शायद सही कह रहे हैं. That's where you need to develop the boundary of silencing those unnecessary suggestions. Remind yourself that you have had a difficult day and it's okay अगर आपने बीच में नैप ले ली है. बहुत सारे लोग इस पे भी क्वेश्चन करते हैं कि तुम्हें सोने की जरूरत क्या थी जब तुम्हें पता है कि तुम्हारे बच्चे का रूटीन क्या है. क्यों? क्या हम ह्यूमंस नहीं हैं? क्या हमारा जिस्म हमें सिग्नल नहीं दे रहा कि बस अब बहुत हो गया आज के लिए, यू नीड टू रेस्ट बिकॉज tomorrow again you have to get up, because tomorrow again you have to do the same thing. Remind yourself, burnout is real and valid. हम क्या करते हैं, हम डिनाइल में चले जाते हैं कि नहीं नहीं मुझे तो कुछ भी नहीं हुआ है, नहीं नहीं मैं बिल्कुल ठीक हूँ, नो नो दिस इज नॉट हैपनिंग, या मैं तो मेरे पास तो गुंजाइश ही नहीं है इस चीज को एक्सपीरियंस करने की. लेट्स नॉट डू दिस विद आवरसेल्व्स, क्योंकि आप जितना डिनाई करेंगे उतना आपकी बॉडी नेगेटिवली बिहेव करेगी, उतना आपकी बॉडी पुश जोन में रहेगी कि बस करते जाओ करते जाओ करते जाओ, एंड इवेंचुअली व्हेन यू कोलैप्स everything collapses. So you don't want to push yourself to a point where you collapse. Parents need support, not judgment. ये आई थिंक ये सोसाइटी में हमें सर्कुलेट करना चाहिए कि पेरेंट्स को सपोर्ट चाहिए, पेरेंट्स को प्यार चाहिए, पेरेंट्स को रिमाइंडर्स चाहिए कि व्हाट यू आर डूइंग फॉर योर चाइल्ड इज एब्सोल्युटली ओके. ट्राई टू डू सम सेल्फ केयर एक्टिविटीज. ठीक है, इट इज अ पार्ट ऑफ केयर गिविंग. आप बेहतर रहेंगे तो आप जो
प्रोवाइड कर रहे हैं अपने बच्चे के लिए वो भी बेहतर तरीके से होगा. Support networks can transform the experience. As I mentioned in the earlier slides कि आप एक supported network में अपने आप को ज़रूर enroll करवाएं because जो आप वहाँ से first hand experience लेंगे for yourself, आपको बच्चे के लिए तो मिल ही रहा है, but for yourself जो आप experience लेंगे, that is going to change the perspective for so many things around you. Lastly, I just want to say this. You can't pour from an empty cup. Caring for yourself is caring for your child. It says for itself. Thank you so much, everybody, for listening. And I'm ready to take any questions, any suggestions, any sharing. Assalamu alaikum. Walaikum salam. Just want to appreciate one thing that, ma'am, currently I'm also being in this field as a behavior therapist. I'm working with special need care children and giving one-on-one Mhm. sessions. So I completely agree with each and everything, especially this burnout. And it is no doubt. I just 100% agree with it because we become emotionally as well as physically burnout at a time when we are being so overloaded with therapies as well as हाँ, the बच्चों को संभालना उनको सेशन में ही हमारी हालत बहुत ख़राब हो जाती टू बी वेरी ऑनेस्ट सो हम्म. मीन्स अलॉट फॉर द स्ट्रेटजीज आई विल होपफुली like go through it and jazakallah for everything and thank you for your time. Thank you so much for sharing your point of view, and I completely understand. And I must give a hats off to all the behavioral therapists, the ABA therapists, जो कि ये learning प्रैक्टिकली अप्लाई करना चाह रहे हैं. ऑल्दो इसकी अवेयरनेस है तो लेकिन एक्सेप्टेंस उस तरह से नहीं आ पा रही है, बट स्टिल यू आर डूइंग योर बेस्ट इन लेटिंग पीपल नो, द पेरेंट्स नो कि हम हैं यहाँ पे आपके बच्चे को बेस्ट प्रोवाइड करने के लिए. सो थैंक यू सो मच एज वेल, थैंक्स टू यू ऑल्सो कि आप जैसे एक प्रोफेशनल्स सामने आ रहे हैं एंड गिविंग द पेरेंट्स द होप कि एवरीथिंग फॉर देयर चाइल्ड इज गोना गेट बेटर. There's some. मैं एक दफा चैट को गो थ्रू कर लूँ. There's a question. Okay. Someone was asking कि ये बातें तो उनको बतानी चाहिए जिनके बच्चे ऐसे नहीं हैं. हम उन लोगों को क्या जवाब दें? See, it can be very challenging to give a shut up call to such people. ठीक है. लेकिन what you can do is आप अपनी sanity की उनसे ये कह सकते हैं कि ये मेरे बच्चे हैं and I'm doing the best I can. ठीक है. ये बाउंड्री डेवलपमेंट में बात आ जाती है, ये सेइंग नो में बात आ जाती है, जो कि बहुत सारे पेरेंट्स और मदर्स उनके लिए बहुत मुश्किल होता है ये करना. लेकिन व्हाट आई कैन से इसके शुरुआत इस तरह कर सकते हैं आप लोग जवाब देने की कि ये मेरे बच्चे हैं एंड आई एम डूइंग द बेस्ट आई कैन फॉर देयर बेटरमेंट. इट डजंट कंसर्न यू. सो थैंक यू सो मच आपका पॉइंट ऑफ व्यू शेयर करने का. मैंने सुन लिया है, बट what I'm doing is the best for my child. Sana Bangush, you have raised your hand. Yes, you have something to ask and share. Yes, ma'am. Thank you so much for this wonderful session. And my question here is since I've been working in an inclusion setup, so I have seen one thing very often, that is that Mhm. there is a constant blaming. Might be the teachers are blaming the therapists are blaming the parents are blaming the therapist. So Hmm. it's a kind of a thing that, there is a constant blaming on one on another. So, ma'am, what do you think? How we can improve it? Like, in my personal suggestion, I think if there is some integrated program in which the parents, the teachers, and the therapists are at the same time involved, then that would work best. But somehow, I think this inclusion, this concept is might be new for all of us at this stage.
So it's not working the way it should have been worked. Okay, Sana, thank you so much for raising this point, and I completely understand where it's coming from. Um, we do have 5 minutes, so I can share it. I was a resource teacher, sorry, I was a shadow teacher 7 years ago in Karachi in a school, जहाँ पे नया नया ये inclusion start हुआ था. So we just had 3 children उस वक्त, ठीक है? And सबसे बड़ा स्ट्रगल जो था वो उस वक्त एडमिनिस्ट्रेशन का और टीचर्स का चल रहा था. एडमिनिस्ट्रेशन वांटेड कि जी इंक्लूजन के बावजूद हम बच्चों के साथ सर्टन स्टैंडर्डाइज चीजें करें, एंड वी एज टीचर्स वर कॉन्स्टेंटली आर्ग्यूइंग कि नहीं, हमें सेपरेटली इनके आईईपीज सेपरेटली डेवलप करके हमें इस चीज को आगे लेके चलना है. हम इनको फॉरेन से स्ट्रीमलाइन क्लासेस में, स्ट्रीमलाइन ग्रुप एक्टिविटीज में नहीं इंक्लूड कर सकते. दे नीड टू गेट कंफर्टेबल. सो आपका कहना ये बिल्कुल ठीक है. आपका ये सजेशन आई थिंक इज वेरी गुड कि जब आप अपने स्कूल में या आप अपने सेटअप में इंक्लूजन स्टार्ट कर रहे हैं, वो स्टार्ट करने से पहले आपके पास स्टाफ ऐसा होना चाहिए, आपके पास काउंसलर, थेरेपिस्ट, टीचर्स ऐसे होने चाहिए जिनकी पहले आप आपस में मीटिंग कराएं, अंडरस्टैंड देयर वैल्यूज. यहाँ पे वैल्यू की बहुत इंपॉर्टेंट बात आती है. आई थिंक दिस इज फॉर एवरीबडी. उनकी वैल्यूज को अंडरस्टैंड करें कि टीचर की वो वैल्यूज हैं कि शी इज रेडी टू टेक अप इंक्लूजन वाले बच्चे. वहाँ काउंसलर की या एडमिनिस्ट्रेशन की वैल्यूज हैं कि दे आर रेडी टू टेक अप इंक्लूजन वाले बच्चे. अगर वैल्यूज इनलाइन अलाइन नहीं है तो फिर तो कुछ भी काम नहीं करता. सो व्हेन यू वांट टू हैव एन इंटीग्रेटेड सेटअप व्हिच इंक्लूड्स पेरेंट्स, चिल्ड्रन, थेरेपिस्ट, काउंसलर, एडमिनिस्ट्रेशन, सबसे पहले हैव अ कॉन्वर्सेशन कि जी आप लोग रेडी हैं इस चीज के लिए, आपस में काम करने के लिए. क्योंकि म्यूचुअल ग्राउंड पे तो आप किसी ना किसी तरह आ जाते हैं, लेकिन अगर आपकी फाउंडेशन नहीं सही बनी हुई होगी, फाउंडेशन डेवलपमेंट नहीं होगी चारों रोल्स की आपस में, तो फिर कोई फायदा नहीं है. सो आई होप दैट आंसर्स योर क्वेश्चन और जस्ट गिव्स यू एन आइडिया कि हम इस चीज को कैसे फर्दर इम्प्रूव कर सकते हैं. सारे रोल्स को, जितने भी इसमें रोल्स इन्वॉल्व हैं, दे नीड टू सिट टुगेदर इनिशियली, टॉक इट आउट. पेरेंट्स की सुने, पेरेंट्स जो है वो काउंसलर की सुने, काउंसलर जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन से शेयर करे कि दिस इज द रिक्वायरमेंट, एंड एडमिनिस्ट्रेशन अगेन टॉक टू देयर सीनियर लीडरशिप्स के जी ये होना है, आर वी रेडी टू टेक दिस अप. So I hope this answers your question. Yes, thank you, ma'am. Thank you, Sana. Assalamualaikum, ma'am. Who is this? Yes, Iram. Walaikum Ma'am, I assalam. have a question. मोस्टली ऐसा होता है कि स्कूल में जो बच्चों को टाइडी अप यानी क्लीनिंग अप का जो कहा जाता है, उसमें पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट का यूज किया जाता है. वो उनके लिए वेरी सिंपल होती है कि बच्चे को एक स्माइली दे दी, बना के एक स्टार गिफ्ट कर दिया, या सम टाइम वीक में एक दिन वो चॉकलेट दे देते हैं कि आपने अपना टेबल जो है वो क्लीन रखना है ऑल द डे जब तक वो स्कूल टाइमिंग में है, और अपना बुक्स जो है वो अपने बॉक्स में वाइंड अप करके जानी है. दे डिड देयर. लेकिन जब वो घर आते हैं और ये रूल एक मदर बनाती है तो उसको वो फॉलो नहीं करते. तो मैंने एक दिन अपने बच्चों से क्वेश्चन पूछा कि आप स्कूल का खुद बता रहे होते हो कि हम सब चीजें ऑर्गेनाइज रखते हैं और सेट करके रखते हैं, और टीचर जैसे जैसे कहती हैं वैसे फॉलो करती हैं, तो आप मम्मा को क्यों नहीं फॉलो करते? तो मैं आपके लिए एक रूल बना रही हूँ कि आपने अपने रूम को भी टाइडी अप योर रूम एवरी डे और ऑर्गेनाइज योर क्लोजेट ऑल द टाइम. तो मैंने उन पे टोकन इकोनॉमी टेक्निक यूज की. ठीक है. तो दे डिड फॉर फ्यू डेज, बट आफ्टर दैट मेरी बेटी ने क्वेश्चन किया कि मम्मा 10 डेज टोकन आप देंगी, तो 10 डेज बहुत ज्यादा दिन होते हैं, तो आप हमें क्या देंगी गिफ्ट? तो मैंने उन्हें कहा कि मैं आपको आइसक्रीम खिलाऊंगी और आपको कुछ छोटा सा गिफ्ट भी दे दूंगी. तो मेरे बेटे का नेक्स्ट क्वेश्चन आया कि मम्मा 10 डेज टोकन इकट्ठे करना बहुत बड़ी बात होती है, और जिस दिन हमने ना किया उस दिन आपने एक टोकन वापस भी ले लेना है, तो इसके लिए ना हमारा जो गिफ्ट है वो बहुत बड़ा होना चाहिए. अब मैंने Okay. उन्हें कहा कि बेटा गिफ्ट गिफ्ट होते हैं, छोटा या बड़ा क्या होता है, गिफ्ट तो गिफ्ट होते हैं. नहीं मामा, आप हमें एप्पल की वॉच लेके देंगी. तो मैंने कहा बेटा आई कांट अफोर्ड
तो मैं जो मेरी अफोर्डेबिलिटी में है मैं वो कर सकती हूँ, मैं ये नहीं कर सकती। तो अब आप बताएं। तो उन्होंने वो रूल ही मतलब छोड़ दिया। उन्होंने तीसरे दिन उन्होंने कहा हम नहीं करते क्लीनिंग अप और आप हमें टोकन भी ना दें। सो मेरा क्वेश्चन ये है कि इस सूरत में हमें क्या करना चाहिए, एक मदर को क्या करना चाहिए, व्हाट शुड वी डू इन दैट सिचुएशन? अच्छा, इरम, दिस इज वेरी रिलेटेबल, वेरी वेरी रिलेटेबल। अच्छा, ये मैंने अपने बच्चों के साथ एक्सपीरियंस किया, बिकॉज आई ट्राई टू डू सर्टन थिंग्स जो वो स्कूल में कर रहे हैं, घर आके नहीं किया। आई एंडेड अप हैविंग अ मीटिंग विद द फॉर्म टीचर, विद द काउंसलर, एंड दे जस्ट टोल्ड मी वन थिंग, कि बच्चे घर को अपना सेफ जोन समझते हैं, because they know they can do whatever they want to do and there won't be anybody constantly on their head कि नहीं ऐसे करना है, ऐसे करना है। स्कूल में तो एक रूटीन चल रहा है, एक डिसिप्लिन चल रहा है, ठीक है, एक टाइम टेबल चल रहा है, एंड दे हैव टू फॉलो इट। घर इज देयर सेफ जोन, तो वो नहीं फॉलो करेंगे हर वक्त इस चीज को। अच्छा, फिर मैंने क्या किया, फिर आई सैट डाउन विद देम और मैंने कहा आप लोग खुद से मेक द चोर्स जो आप लोगों ने घर में आके करने हैं, और जब आप करते जाएंगे आप लोग खुद टिक लगाते जाएं इसको। आई विल नॉट से एनीथिंग, मैं नहीं करूंगी। हाँ, और जिसके वीक में होते चले जाएंगे, एट द एंड ऑफ द वीक और एट द एंड ऑफ 2 वीक्स वी विल डिसाइड कि हमें क्या करना है। सो आई गेव देम द इंडिपेंडेंस, द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ highlighting the chores and highlighting the work they want to do in the house, जो कि ऑर्गेनाइजेशन में भी आ जाएगा, जो कि रूटीन का हिस्सा भी बन जाएगा। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, इट डिपेंड्स कि आपके बच्चे किस एज ग्रुप के हैं। फॉर एग्जाम्पल माई एल्डेस्ट वन इज ऑलमोस्ट प्री टीन, माई मिडल वन इज 9, ठीक है। सो आप प्री टीन और 9 year old के साथ ये बात फिर भी कर सकते हैं कि अच्छा चलो, यू मेक योर timetable, give them the independence, the freedom, the flexibility of taking things in their own hands. लेकिन अगर और छोटे बच्चे हैं, उनके साथ थोड़ा क्रिएटिव होना पड़ता है आपको कि दिस नीड्स टू बी डन बेटा, चाहे आप एक टास्क करो, चाहे आप 2 टास्क करो। सो इट्स communication and creativity, and with a lot of patience. I will not lie, as a mother, it's the patience and creativity. मैम माय सन इज 9 years old एंड माय डॉटर इज 8 years old। और जो आपने अभी टेक्निक बताई टिक वाली, आई ऑल्सो अप्लाइड दैट कि आप जो काम करेंगे टिक करते जाएंगे। तो उन्होंने पूरा दिन टिक कर करके शाम को मुझे बताया कि मामा पेज फिनिश हो गया है और ये सारे टिक हमने कर दिए, हमने ये सारे काम किए और अगले दिन जो है न्यू पेज दें हमें। तो वो उससे भी फेडअप हो जाते हैं, मतलब 1 2 3 दिन 4 दिन ये रूटीन रहती है और उसके बाद फिर उससे भी वो फेडअप हो जाते हैं, वो कहते हैं सॉरी वी कांट डू दिस। Because uh, this is them being kids. बच्चे एक चीज पे कभी भी फिक्स नहीं रहेंगे। यहाँ पे पेरेंट्स की, एज आई सेड, पेशेंस और क्रिएटिविटी का इम्प्लीमेंट होना जो है वो एक टेस्ट होता है कि अच्छा हम अपने बच्चों को कैसे इस चीज में मजीद इन्वॉल्व रखें। सो देयर इज नो हार्ड एंड फास्ट रूल। मैं बहुत ऑनेस्टली ये कहूंगी, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि जब बच्चे जैसे स्कूल में ऑर्गेनाइज है वैसे घर में भी होंगे। स्टार्ट विद वन थिंग, ठीक है। डोंट गिव देम अ लॉट ऑफ थिंग्स एट अ टाइम। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप चाहती हैं कि वो घर आके स्कूल का बैग और लंच बैग जहां जो जगह है वहीं रखें, स्टार्ट विद दैट, ठीक है, ताकि बच्चे ये भी ना फील करें कि हमें सिर्फ इंस्ट्रक्शन पे इंस्ट्रक्शन मिल रही है। एंड जब वो स्कूल बैग और लंच बैग एक जगह रख देंगे, ये काम आपके बेस पे उन्होंने किया, आपने उनको इंस्ट्रक्शन दी थी ये करने के लिए। सेकेंड स्टेप, आस्क देम, ओके अब हमें क्या करना चाहिए, व्हाट डू यू थिंक वी शुड डू नाउ। Give them the opportunity to think, give them the responsibility of the second step. So this is something जो क्योंकि मैं ये कर चुकी हूँ, मुझे रिजल्ट मिल गए थे इस चीज के, तो मैं ये सजेस्ट कर रही हूँ, वरना शायद मैं नहीं करती। थैंक बट यू इट ऑल सो मच डिपेंड्स। मैम, थैंक यू सो मच। आई विल ट्राई माय बेस्ट और आई होप कि मेरे बच्चे भी सुधर जाएंगे एक दिन। Enjoy से दुनिया these कायम है ages. कि इट्स अ रियली डिफिकल्ट टास्क फॉर एवरी मदर। ये बच्चों की तरबियत इज सच अ डिफिकल्ट टास्क।
it is and इसमें कोई गलत बात नहीं है इस बात को एडमिट करना कि भाई ये बहुत it's a hassle of daily it's a daily struggle इसमें कोई शर्मिंदगी कोई गिल्टी की बात नहीं है it's very true it's very raw it's very real and I hope it works out for you Iram and another thing you can do is get creative with internet get support from internet वो हो सकता है आपको कोई बच्चों की इस तरह की बता दें टास्क को हैंडल करना all right we are 5 minutes past 3 if there are Acha, any I yes also wanted to add something on what Iram was saying regarding कि वो कहते हैं कि हमें Apple Watch गिफ्ट करें और हमें जो टोकन की जो डिमांड है वो अब उनकी काफी हाई हो गई है. आई बिलीव डेफिनेटली देयर इज अ जनरेशन गैप कि हमारे टाइम पे ये चीजों की हमें शायद इसकी वैल्यू का पता था या हमारे सामने वाज नॉट दैट कॉमन तो वी वुडंट एवर आस्क फॉर सच थिंग्स इवन इफ वी आर डिजर्विंग ऑफ इट इवन इफ वी get A stars still we wouldn't ask for these things because I think अब जो है ना बच्चों को definitely the strategies that we're applying for the kids to behave and to have manners and to be able to follow the instructions we also need to educate them and guide them about benefits or disadvantages of these things ठीक है आई थिंक उसके भी बारे में बात करने की जरूरत है कि बच्चे को बताएं कि व्हाट इज एप्पल वॉच उसकी क्या वैल्यू है उसकी क्या वर्थ है वो कितना प्राइसली है वो कैसे आप अर्न कर सकते हो वी नीड टू ऑल्सो टेल देम उनको नहीं पता उनके लिए एप्पल वॉच की या आईफोन की या लाखों की कोई वैल्यू नहीं है दे जस्ट वांट इट बिकॉज़ इट्स वेरी कॉमन बिल्कुल it's an attraction and thank you so much Afra for bringing this point up जहाँ आपने बात की कि हमें बेनिफिट्स और वर्थ बताना चाहिए वहां हमें बच्चों को ये भी सिखाना चाहिए व्हाट इज अ नीड एंड व्हाट इज अ वांट यस डेफिनेटली हमारी नीड्स क्या है इस वक्त हमारी वांट्स क्या है फॉर एग्जांपल आई बी वेरी ऑनेस्ट है बिकॉज इट्स अ सेफ स्पेस मेरे बेटे ने मुझे कहा कि मुझे मैक एयर बुक आईपैड समथिंग कुछ है मैकबुक एयर मुझे वो चाहिए मैंने कहा अच्छा डू यू नीड इट you do you want it all my friends in the class have it so I need it फिर मैंने उसको एक्सप्लेन किया कि you don't need it you just want it because all your friends in the class have it और फिर मैंने उससे पूछा कि इसका पर्पस क्या होगा स्पीड अच्छी है उसकी उसमें ये ऐप्स हो जाएंगी दिस एंड दैट उसने अपनी टेक्निकल चीजों को एक्सप्लेन किया एंड आई सेड कि ये आपके स्कूल से रिलेटेड है काम आपके स्कूल का काम अगर इस वक्त बिकॉज यहाँ पे स्कूल की तरफ से प्रोवाइडेड हैं डिवाइसेस जिसमें इनके सारे रिसोर्सेज और असाइनमेंट्स होते हैं सो आई ट्राई टू हैव दिस कॉन्वर्सेशन कि जो स्कूल की डिवाइस ऑलरेडी गिवन है क्या वही सारा काम आपकी मैकबुक में होगा शी सेड यस मैंने कहा तो यू डोंट नीड इट बेटा you don't need it it's just an attraction it's a want because you are seeing it with your friends ठीक है वो बात कर रहे हैं इसकी और आपको बड़ा ये लग रहा है कि मैकबुक लेके आप जो है बड़े awesome हो जाएंगे so jokes apart but we need to give them the understanding of needs and wants and help them identify कि ये चीजें मेहनत करके मिलती हैं you just don't get it on a silver platter all right everybody anything else any suggestion any share or should we wrap up yes Manur understand the value of money and the times that we are living in I think ये बहुत जरूरी है कि हमारे बच्चे समझें कि how hard the parents are working and उसका एक रिवॉर्ड होता है वो हमें अर्न करना पड़ता है हमें ऐसे मिल नहीं जाता Okay. All right, then I think it's time to wrap it up. Thank you so much, Amna, for the wonderful session, for wonderful insights and tips. And I believe it was very fruitful, much needed session. And the best part is about कि कुछ topics होते हैं जो थोड़े से boring से होते हैं, थोड़े से बड़े basic से होते हैं. But I love how you made it so engaging and how great so much, knowledge Afra. that you have shared with us. Thank you so much, Amna. Thank you for all the participants as well. I'm going to turn on the WhatsApp group chat. वहाँ पे you can share the feedback, share any questions that you have. Amna Ansari is part of the group and she would love to
She would love the feedback, as well as if there's any other questions that you want to ask. We have our next episode on Sunday, I believe. So stay tuned, and inshallah, I will see you again soon. Thank you so much. Allah Hafiz. Thank you so much, everybody. Thank you so much for your support, your love, your questions. And I would be happy to answer them in the WhatsApp chat. Take care, everybody. Allah Hafiz.